Students, welcome to the e-learning class. Myself, Anju Pandey, your business study teacher. Today, I am going to discuss the 8th chapter of business studies, that is the controlling. In this chapter, I will discuss the meaning of controlling, features, and the importance of controlling. So now, as we know, controlling. Controlling, this is the fifth function of the management. Now, what is controlling? We know the fifth five function of management, that is the planning, organizing, tasking, directing, and the controlling. This is the last function of management. Now, what is controlling? Controlling means क्या function है management में controlling का? So, controlling means controlling can be defined as comparison of actual performance with a planned performance. Controlling means to compare the actual performance with a planned performance. Planned performance मतलब in the beginning, when the management first function management क्या है? At the beginning, we have to plan what strategy, what plans, मतलब what things we have to do. ठीक है? The controlling means compare that जो भी plan बनाया है at the beginning, that performance will be actually happen or occur at the last or not. मतलब comparing the actual performance with a planned performance. जो हमारा प्लानिंग था, जो हमने प्लानिंग बनाया था, उससे हमारा वो वर्क को अचीव हुआ नहीं है. दैट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. मतलब कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. It defines that it determines what is being accomplished, and that is executing the performance, and it is necessary apply the correct measures so that the performance takes place according to the plan. So here, controlling does not mean to compare the actual performance with planned performance. It also takes the corrective measures for which the plan that does not achieve. Here the plan controlling means to also take the corrective measures for which the plan for which our goal was not achieved. Controlling means comparing the actual performance with the planned performance, and also take the corrective measures for which our deviation or deficiency was not achieved. Why it was not achieved? That is known as a control. मतलब कंट्रोलिंग क्या है? हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो अगर नहीं अचीव होगा अकॉर्डिंग टू द प्लान परफॉर्मेंस से हमारा परफॉर्मेंस में देखा जाएगा. डेविएशन में क्या कहता है? डिफरेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस में और प्लान परफॉर्मेंस देखा जाएगी कितनी टारगेट हमारा नहीं अचीव है. उस टारगेट को न अचीव होने के कारण उसमें क्या कमी है, क्या रीजन है कि हमारा वो टारगेट नहीं है, उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ द कंट्रोलिंग. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग. मतलब कंट्रोलिंग क्या करता है कि हमारा जो रिजल्ट जो नहीं अचीव हुआ उसको हम दोबारा कैसे उसको इम्प्रूव कर सके ताकि फ्यूचर में हमारा वो लॉस ना हो सके, उस टारगेट को हम अचीव करें. दैट इज नोन एज द कंट्रोलिंग. सपोज आपको फैक्ट्री से बोला गया है 1000 यूनिट का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया. ठीक है, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया. अगर आपका ये टारगेट है हमारा एंड बिगनिंग एंड our organization at the beginning of the year for the planning phase that we have to this year we have to made a 1000 units of production. ठीक है, लेकिन हम लोग क्या लास्ट में हम लोग एट द एंड ऑफ द ईयर में हमारा देखा गया मुझे 900 यूनिट प्रोडक्शन किया. 900 यूनिट प्रोडक्शन किया. ठीक है, 900 ये 100 यूनिट क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? क्या रीजन था? वेदर द मशीनरी का डिफेक्ट था कि वर्कर इनकैपेबिलिटी थी, क्या रीजन था कि हम लोग वो नहीं कह रहे. वो हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन करता है कि वो डिटेक्ट करता है वो मेजर कि क्या रीजन है कि उसको मेजर्स को हम लोग ले ताकि इन फ्यूचर में हम लोग जो हमारा प्लान है 1000 यूनिट प्रोडक्शन का उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं. तो कंट्रोलिंग मीन्स क्या है? इट कंपेयर्स एंड ऑल्सो टेक द करेक्टिव मेजर्स. पहले वो कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से प्लान परफॉर्मेंस, देन इट टेक द करेक्टिव मेजर्स सो द परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो जो हमारा टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर सके. दैट इज नोन एज द कंट्रोलिंग. So in controlling there are two aspects of controlling. First is the strategic control and second is the operational control. Now what is the strategic control? Strategic control क्या होता है? It refers to check how the effective strategies and the plans are, because sometimes there can be deviation in actual performance and the planned performance. To plans
एंड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मीन्स मतलब वो क्या देगा, इट टेक्स जो हम लोग प्लान बनाए, जो स्ट्रेटेजी बना है वो क्या है, वो हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ है कि नहीं, दैट कैन बी डिविएशन इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब हमने जो अभी टारगेट अचीव किए हैं, जो प्लान किया है वो नहीं, जो हमारा वर्कफोर्स मशीन द्वारा हमारा टारगेट प्रोडक्शन बना उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। डेविएशन मीन्स द डिफरेंस, डेविएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान परफॉर्मेंस। उसका डिफरेंस क्या है, कितने डिफरेंस से हमारे प्रोडक्शन से हमारा जो वर्क कैपेसिटी था वो जितना हमारे उसको डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग बोलते हैं एज ए डेविएशन। यहाँ स्ट्रैटेजी हम होता है कि चेक हाउ द इफेक्टिव स्ट्रैटेजी प्लान, मतलब जो हमने प्लान बनाया स्ट्रैटेजी क्या इफेक्टिव है कि उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं, वो होता है हमारा स्ट्रैटेजी। तो इसको कभी कंट्रोल करें, जरूरी नहीं हर चीज वर्कर्स की डिफरेंट है, वेदर द प्लान में भी डिफरेंट होता है, वो चीज होता है हमारा कंट्रोल। मतलब हमको पहले स्ट्रैटेजी देखना है कि जो प्लानिंग हमको बनाया है मैनेजमेंट में वो हमारा आगे स्मूथली यूजली वे से अचीव कर सकते हैं कि नहीं, that is known as the strategic control. Next is the operational control. Operational control क्या बोलते हैं? It refers to focus on the management and the other activities of the organization. Management activities and other activities of the organization means here the to control or to look over the operation, मतलब workers की performance को देखा जा रहा है कि मशीन हमारा सही रन हो रहा है, कि वर्कर्स हमारे कैपेबिलिटी है कि रन कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, if they are incapable then they have to pay for the training. So these are the two aspects of the controlling that the control performs, that strategic control and the operational control. Operational control से हम लोग मैनेजर एक्टिविटी रिजल्ट देखते हैं और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हमारे प्लान और स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हमारा प्लान और स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं। क्या whether the controlling is a wider scope or narrow scope, क्या कंट्रोलिंग वाइडर स्कोप है कि हमारा प्लान को जज किया एक्चुअल परफॉर्मेंस देख लिया बस हो गया, नो, कंट्रोलिंग इज अ वाइडर स्कोप। First compare the plan with actual performance and then take the correct measures to move the insufficient workers or machinery, to take the corrective measures to not achieve the target of the goal. मतलब पहले तो परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेंगे किस तरह से कितना हमारा टारगेट नहीं है, देन वी हैव टू take the corrective measures to control all this defect why they have not achieved, मतलब वो डिटेक्ट करता है और उसका मेजर्स लेता है किस तरह से उसको सॉल्व करता है। So controlling is one of the wider scope and is required at all level of management. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल पर हर जगह पर कंट्रोलिंग की जरूरत है। Now next we come to the nature of controlling. Nature of controlling is here controlling is a goal oriented function. Controlling is goal oriented function means controlling focus on the goal. मतलब whatever the plan made by the management or the organization, the controlling function is equal to the main features of control. It focus on the goal oriented, what our target to achieve. Our organization. So हमारा जो target हमको क्या target हमको achieve करते हैं, that is known as the controlling or the goal oriented function. मतलब one of the main features of the controlling that is the goal oriented, focus on the goals to be achieved. Here next, controlling is a pervasive function. Pervasive, as you know, it required at all levels of management. It is a universal. It required at all levels of management. मतलब हर जगह controlling की जगह है, whether it is top level management, middle level management or lower level. Mainly the controlling is for the subordinate levels कि आपको वहाँ पर वर्कर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, यूनिट हो रहा है, वहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्स का ज़्यादा होता है, हमारे कंट्रोलिंग की ज़्यादा जरूरत हमारे हो जाए, लेकिन बट इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ, मतलब इट रिक्वायर्ड एट ऑल ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So it is a pervasive function. Clear? It is now third, it is both backward looking as well as forward looking. This is the most important point of the nature of the controlling है. The third point आपका बहुत important कि controlling is both backward looking as well as forward looking. It's a backward looking है और कैसे forward looking है. Backward looking means it determines the plan, what the organization has made a plan to achieve the goal. मतलब वो हमने पहले प्लानिंग के पास जाता है कंट्रोलिंग, वहाँ पर देखते हैं हमारा क्या टारगेट है, हमको क्या गोल अचीव करना है. Now forward looking में when the पूरा हमारा at the end of the year when the total work is completed, the actual
actual performance was occurred, जो हमारा actual performance हो जा रहा है, then we have to compare the plan with the actual performance and take the corrective measures to detect the deviations for the target. Detect the deviations मतलब हमारा जो distance है, जो प्लान परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं हुआ, उसको डिटेक्ट करते हैं. Then we have to take a corrective measures to recover the plans which are target which are not achieved for the phase of the planning. क्या रिजल्ट हमारा प्लानिंग फेज हुआ था, क्यों हमने जो टारगेट अचीव किया था उसका करेक्टिव मेजर्स लेना है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव. मतलब ये प्लान के साथ भी चलता है और इन फ्यूचर अगर जरूरत है तो ये करेक्टिव मेजर्स लेने का, ताकि वो फ्यूचर हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें. Yes, so planning is a both backward and a forward looking. वो पीछे भी देखता है और आगे भी. Yes, it is a continuous process. Continuous process में controlling is a continuous process. वो हमेशा वो यूज होता है, क्योंकि ऐसा नहीं एक बार आप कंट्रोल करेंगे प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम भी. नो, कंट्रोलिंग इज दिस कंटिन्यूअस. ईच एंड एवरी टाइम कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द बेस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. मतलब कंट्रोलिंग का हमेशा कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड है, क्योंकि ताकि हम लोग हमेशा ऐसा नहीं कि हर बार एक बार टारगेट अचीव किया तो वो हो गया. कंटिन्यूस प्रोसेस क्या, हम लोग को कंटिन्यूसली देखना है कि वो हमारा जो टारगेट हमने बनाया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं. अगर नहीं हो रहा तो कैसे अचीव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. लास्ट, इट इज अ रिजल्ट related to the control of end result. Last features of the control, that is the control is related with the end result. End result मतलब हमारा लास्ट का रिजल्ट देखता है. कंट्रोलिंग हमारा क्या देखता है कि एंड में रिजल्ट देखता है कि हमारा एंड से रिजल्ट जो टारगेट हमने बनाया है वो अचीव हुआ है कि नहीं. ठीक है, तो हमारा कंट्रोलिंग का काम क्या है, वो लास्ट में देखता है कि हमारा क्या टारगेट हमने जो बनाया वो अचीव हुआ है कि नहीं. तो इट इज द लास्ट फीचर, द कंट्रोलिंग इन द एंड रिजल्ट ऑफ द कंट्रोल. Yes. So, come to the next topic. That is the next topic. That is the importance of controlling. Importance. What is the importance of controlling in the management? क्या controlling का importance है in the management? First point is that help in achieving the organizational goals. Help in achieving the organizational goals means when the plans are made for achieving the particular goal. So our next topic is that is the importance of controlling. Importance of controlling in the management. What is the importance of controlling in the management? Management controlling का क्या importance है? That we will discuss. First part is helping achieving the organizational goals. Helping achieving the organizational goals means yes, when the plans are made for achieving the goals, determine the goals. Plans क्या कहता है? हमारे organization का goals determine करता है to achieve the and directly toward the organization to achieve a particular objective. ठीक है, प्लानिंग का क्या काम है, वो डिटरमाइन करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल अचीव है. But the controlling helps to perform ensure that all the activities are performed according to the plan or not. Yes, तो प्लानिंग का क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव. But the controlling helps that whether the plans were the plans made by the organization is running according to their planning or not. मतलब जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है वो परफॉर्मेंस वर्क हमारे अकॉर्डिंग टू कर रहा है कि वो कंट्रोलिंग का पार्ट है, फंक्शन. तो इट आल्सो कंट्रोल डिटेक्ट द डेविएशन. डेविएशन मींस द डिस्टेंस. मतलब क्या होगा, इफ देयर इज ए डेविएशन देन द कंट्रोलिंग कैन टेक द करेक्टिव मेजर्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये होता है इन दिस वे द कंट्रोलिंग हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब अगर जो प्लानिंग हमने बनाया है वो गोल को अचीव करना है, तो अगर कंट्रोलिंग हमारा सही से रहेगा तभी हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं एज ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कंट्रोलिंग. सेकंड, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. Judging the accuracy of standard means here the strategy of control helps the controlling to judge whether the actual performance which are large in the planning whether it is running according to the control or not. मतलब जो हमने strategy control पढ़ा था,
एक्चुअली क्या था, हम लोग देखा कि वेदर जो प्लान हमने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन में वो हमारा सही है कि नहीं, एक्चुअली दे आर सेट और नॉट और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वी कैन चेंज द प्लान आल्सो। तो कंट्रोलिंग फंक्शन देयर टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हम लोग का एक्यूरेसी मतलब हमारा प्लान को रिवाइज करता है हमेशा वेदर दे आर plan has made with related with the changes of environment or not, whether the plan will cope up with the environment or not। तो हमारा इससे क्या है, कंट्रोल हमारा क्या करता है, हमारी स्टैंडर्ड का एक्यूरेसी को जज करता है whether the particular plan was used plan in the organization is accurate or not। ठीक है, ताकि वो जो हम लोग एक रिजल्ट हम लोग अचीव कर सके कि वो हमारा जज करता है हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट मेकिंग efficient users of resources। efficient users of resources how to control the efficient users of resources, मतलब कैसे मैं कंट्रोल हमारा efficient use of resource कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि जो प्लान हम लोग बना रहे हैं उसका कंट्रोलिंग का काम है उसको देखना, फिर उसको डिटेक्ट करना, टेक द करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स टाइम टू टाइम अगर हम लोग करेक्टिव मेजर्स कर लेंगे, हाँ क्या हमारा प्लान पर जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसमें क्या कमी आ रहा है कि हमारे बच्चों की होगा क्या कुछ फेल हो रहा है इन एक्टिविटीज और वर्कर्स में, अगर उसी समय हम लोग उस प्लान को एक्टिविटी को डिटेक्ट करें और उसी समय हम करेक्टिव मेजर्स टेक करें, उससे क्या होगा हमारा एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्स, मतलब हमारा जो रिसोर्स है वो वेस्ट नहीं होगा, आगे एफिशिएंट वे से यूज करें और हमारा टारगेट भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इट इज ओनली द कंट्रोलिंग हु डेयर्स टू अचीविंग द एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्स। कंट्रोलिंग के जो हमारा एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्स है, क्यों इट डिटेक्ट द डेविएशन, क्यों कर रहा है एफिशिएंट यूजेस को, क्योंकि हमारा डेविएशन को डिटेक्ट कर, डेविएशन में डिटेक्ट हमारा क्या कमी है हमारे वर्क में परफॉर्मेंस में उसको डिटेक्ट कर रहा है कंट्रोलिंग, और देन दैट विल टेक द करेक्टिव मेजर्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये होता है हमारा कंट्रोलिंग टू टेक द एफिशिएंट यूजेस ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट improving the employee motivation, improving the employee motivation skills। तो टाइम टू टाइम हम लोग बहुत अगर वर्कर्स को ध्यान दें वर्कर्स क्या वर्क कर रहे हैं, जब वर्क इज अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस और नॉट, इफ देयर इज इनकैपेसिटी और देयर मस्ट बी गिविंग द ट्रेनिंग एंड इफ देयर इज अ डिसऑनेस्टी और देयर मस्ट बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल। तो वो चीज होता है हमारा इंप्रूविंग द एम्प्लॉय, मतलब रेगुलर फीडबैक हम लोग का अगर एम्प्लॉयज को हम लोग ध्यान दें हमारे वर्कर्स क्या कर रहे हैं हमारे क्या, उससे क्या हमारे एम्प्लॉय में भी मोटिवेट हो सकते ताकि उनको लगे कि हाँ हमारे वर्क को एनालाइज किया जा रहा है, हमारे वर्क परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, तो आगे बेस्ट वे टू अचीव द रिजल्ट। हम लोग चाहे हमसे भी प्रॉपर अच्छा वर्क कंट्रोल ताकि हमारा एक रिजल्ट अचीव कर, जो हमारा प्लान का जो रिजल्ट हो सके। दिस इज ओनली with the help of controlling, हमारे कंट्रोलिंग फंक्शन द्वारा होता है जो हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर? नेक्स्ट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मींस मतलब है कंट्रोल इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मतलब एक डिसिप्लिन मैनर से हम लोग को एक वर्क को परफॉर्म करना है, उस वर्क को अचीव करना है। कंट्रोलिंग to achieve the goal which is made by the plan, मतलब कंट्रोल का क्या है, हमको वो टारगेट अचीव करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमको दिखाना है वो हो रहा है। इससे क्या होगा कि वर्कर्स क्या ना अगर रेगुलर उन लोग का देखा जा रहा है हम लोग की कमी क्या आ रहा है, उससे क्या होगा उन लोग को लगे कि हाँ उन लोग पर ऑर्डर और डिसिप्लिन ले सकते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। क्लियर? लास्ट इज द कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन here the control of to calculate the coordinate in the organization goal। coordination क्या मतलब हम लोग अगर सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वर्कर्स का इनिशिएटिव ये देखें तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट करें कि आपको वो वर्क परफॉर्मेंस उनको फिर से ट्रेन करें कि आप जैसे जिसके साथ परफॉर्म करें, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ये आ रहा है हमारे मैनेजमेंट में जो कंट्रोल हमारा कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कैसे का कोऑर्डिनेट मैनेज ला रहा है ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है can be achieved। Yes, of the controlling that is to facilitate the coordination in action. Means here controlling fails to maintain the equilibrium between the means and the end. Means and the end. It makes sure whether the controlling is according to the performance or as directed. मीन्स मतलब जो परफॉर्मेंस हम लोग दिया जो प्लानिंग दिया गया वो अकॉर्डिंग टू चल रहा है कि नहीं,
मतलब वो एज ए डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन देखना कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग हम लोग बनाया वर्कर्स उसके अकॉर्डिंग वर्क करें. So this is also comes with the help of coordinator. If there is a coordination between the worker, then we can able to achieve the goals and the targets. Clear? तो ये हमारे कंट्रोलिंग द्वारा ही होता है जो हम टारगेट को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट द कोऑर्डिनेशन इन एक्शन. मतलब जो वर्कर्स को वर्क परफॉर्मेंस एज अ कोऑर्डिनेशन मैनर में हम लोग आज गोल को अचीव कर सकते हैं. Clear, students? Come to our next topic. Our next topic is the controlling process. What are the steps involved in the controlling process? हमारे controlling process में क्या क्या process है? As we know, what is controlling? Controlling is the comparing the actual performance with the planned performance and the strategy. मतलब controlling means क्या होता है? Compare करना as actual performance with the planned performance. Now, what are the steps involved in the controlling process? क्या क्या steps involved होता है हमारे controlling process में? First is the setting of standard. Setting of standards means here, setting of standard means the plan, जो हमने प्लान बनाया है फॉर द फ्यूचर्स के लिए, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन से प्लान किया वो एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए. क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? लेट अस डिस्कस. सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड मीन्स द टारगेट और द यार्डस्टिक अगेंस्ट द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. मतलब ये एक यार्डस्टिक है जिससे हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाए. मतलब हमने जो भी प्लान में बनाया गया वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ताकि उसको अचीव कर सके, उसको मेजर कर सके, उसको क्वांटिटी मेजर कर सके, क्वालिटी मेजर कर. दैट इज मीन्स द स्टैंडर्ड. मतलब जो स्टैंडर्ड हमने बना रहा है, जो भी हमने प्लान टारगेट बनाया है कि फ्यूचर्स में हमको अचीव करना है, इट मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और परफेक्ट स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो स्टैंडर्ड मीन्स द टारगेट दैट इज यार्डस्टिक अगेंस्ट टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. मतलब एक हमारा यार्डस्टिक में से एक हमारा एक मेजरेबल होना चाहिए ताकि हम इसको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सके. ठीक है. द स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल हाई और वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैनॉट बी अचीव ऑफ नो यूज. मतलब हम लोग को प्लान्स में जो हम लोग टारगेट बना रहे हैं, जो हम लोग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बना रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, वो उस तरह से बनना चाहिए ताकि हम लोग उसको अचीव कर सके. मतलब ऐसा भी टारगेट क्या बना जिसको हम अचीव न कर सके. तो बोला गया कि टारगेट हमको उसी तरह से परफॉर्म करना है, तो उस तरह से बनाना चाहिए दैट इट मस्ट बी अचीवेबल और वेरी हाई स्टैंडर्ड विच कैनॉट बी अचीव. और उस तरह से भी हाई स्टैंडर्ड ना बनाए जिसको हम लोग अचीव न करें. मतलब ऐसा रहे वो टारगेट जो हम लोग अचीव कर सके, मेजर कर सके और हमारे इजी वे से हमारे वर्कर उसको समझ सके, तभी उस गोल्स को हम अचीव कर सकें. ठीक है. तो हमको अकॉर्डिंग टू देयर measurable quantity, quality and the target we have to make. मतलब measurable, qualitative और comparable. मतलब easy to understand, achievable रहना चाहिए. उसको हम लोग बोल सकते हैं कि controlling must be setting as a standard. मतलब standard set करता है जिससे वर्कर्स को easy way से हम समझ सके ताकि उस वर्क को easy way से perform कर सके. That is the first step involved in the controlling process to setting up the standards. ठीक है. तो यहाँ पर सेटिंग स्टैंडर्ड में क्या मेन चीज होता है, एक क्वांटिटी होता है कि क्वांटिटी मेजर किया सकता है, अचीवेबल हो सकता है और क्या क्लास है विच कैन बी इजीली अवेलेबल, इजीली अचीवेबल, मतलब जो अचीव कर सकते हैं इजीली. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस टू सेटिंग अप द स्टैंडर्ड. क्या नेक्स्ट दैट इज द मेजरिंग द परफॉर्मेंस. नाउ आफ्टर द प्लान हैज टू मेक फॉर द अचीव द टारगेट. ठीक है. तो वो टारगेट्स को हम लोग क्या करना है नेक्स्ट टू मेजरिंग द परफॉर्मेंस. तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड में एक बार फिर से बता देते हैं कि सेटिंग स्टैंडर्ड में सपोज आपने एक न्यू कंपनी फॉर्म किया है तो आपका एक टारगेट बनता है कि हमको उस प्रोडक्शन में हमको कितना इसका प्रोडक्शन बनाना और हमारा कितना सेल्स होना चाहिए. तो इतना वो एज ए एस्टिमेट बनाना है कि ताकि हम उसको कवर कर सकें. ऐसा नहीं कि हमने बना दिया बहुत सा ज्यादा और अचीव न कर पाए. तो हमको एक सेटिंग स्टैंडर्ड करना ताकि उस गोल्स को हम अचीव कर पाए, उस तरह से हमको प्लान बनाना. ठीक है. नाउ सेकंड स्टेप मेजरिंग द परफॉर्मेंस. मेजरिंग द परफॉर्मेंस मीन्स कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर लिया, अब क्या करें हमको परफॉर्मेंस को मेजर करना है. किस तरह से परफॉर्मेंस को मेजर करना है. नाउ आफ्टर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड बाय एवेल्यूएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय. मतलब मेजरिंग कैसे हम कर सकते हैं. तो जो हमारा प्लान टारगेट था, जो हमने प्लान किया था कि हमारे कंपनी में
इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। अब ना हमको करना है कि हमारा जो एम्प्लॉय ने क्या वर्क को कितने हद तक उसको कंप्लीट किया है, कितना टाइम। सपोज कंपनी ने टारगेट किया कि हमको 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और हमारा टारगेट, हमारा एम्प्लॉय ने 80 टारगेट है, तो वो हमारा मेजरेबल हो रहा है। ठीक है, मेजर करें कि हमने 100 का टारगेट किया था लेकिन 80 हमारा कंप्लीट हुआ, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग एक्चुअल एबिलिटी इन द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय, हम लोग यहाँ पर क्या मेजर करें कि what our employee was able to perform the particular work which was given by the plant। ठीक है, जो हम लोग टारगेट दिए थे उसमें हमारे एम्प्लॉय ने कितने वर्क्स को परफॉर्म किया है और कितने वर्क्स को अचीव किया है, दैट इज मीन्स एबिलिटी इन द एक्चुअल वर्क डन। ठीक है, while measure the performance, the quantity as well as the quality aspects of the performance is kept in mind। Now while measuring the performance of the employee, it should be kept in mind whether the production should be in a qualitative or a quantitative। क्या qualitative means here, quantity means आपने 100 प्रोडक्शन बनाया, ठीक है, आपने 100 प्रोडक्शन का टारगेट दे दिया और लेकिन एम्प्लॉय हमारा 120 टारगेट प्रोडक्शन कर रहा है, उससे क्या पड़ रहा है कि हमारा क्वांटिटी कितना बन रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हर जो प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो क्वांटिटी क्वालिटी होना चाहिए। तो along with quantity we should also measure the quality of the product। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि हम ज्यादा प्रोडक्शन बने उसकी क्वालिटी न देखें, उससे क्या हमारा सेल्स डिक्रीज होगा। ठीक है, हर चीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से देखो कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बना दो, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं रहे तो क्या होगा, हमारा मार्केट में सेल्स इंक्रीज होगा, हमारा मार्केट में उसका गुड्स का डिमांड नहीं रहा। तो अकॉर्डिंग यहाँ बोला मेजरिंग द पर्पस दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वेदर द प्रोडक्शन शुड बी मस्ट बी इन क्वांटिटी एज वेल द क्वालिटी। हमने टारगेट 100 का बनाया तो हमको 100 प्रोडक्ट ही चाहिए लेकिन एज अ बेस्ट क्वालिटी में चाहिए, अलॉन्ग विद द क्वालिटी मस्ट बी देयर इन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था हमारा मेजरिंग परफॉर्मेंस। हम लोग को क्या करना है, हमको एज वेल एज क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों का मेजरमेंट देखना है कि वेदर द आवर प्रोडक्शन हैज अ क्वांटिटी और नॉट, कि हमने जो टारगेट बनाया उसमें अगर 80 प्रोडक्ट बनाया तो उसमें क्यों बना है। ठीक है, तो ये चीज हो जाए क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स काउंटिंग में हमने जो प्रोडक्शन टारगेट किया है उससे हमने कम बनाया कि ज्यादा, वो मेजर करना है। क्वालिटी में है कि हमारा एज अ बेस्ट क्वालिटी यूज है, अलॉन्ग विद द क्वांटिटी देयर मस्ट बी अ क्वालिटी इन द प्रोडक्शन। क्लियर? नाउ the next step for the controlling process after measuring the performance, the next step is comparing the performance against the standards। now comparing the performance against the standards, comparing मतलब comparing the performance, किसका परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, यहाँ पर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हमारा स्टैंडर्ड मतलब जो हमने कंपनी में टारगेट बनाया था कि हमको इस साल इतनी प्रोडक्शन चाहिए, तो जो टारगेट बनाया कंपनी का उस टारगेट से हमने आज एम्प्लॉय के टारगेट को कंपेयर किया जा रहा है। whether the company employee was able to perform the achieve the particular goal according to our planning or not। मतलब हमारा यहाँ कंट्रोलिंग का थर्ड स्टेप क्या है कि you have to make a compare whether the employee has achieved the planned target or not or the standard target or not। ठीक है, तो comparing the performance मतलब after measuring the performance of the managers compare the actual performance with the planned performance and the standard। ठीक है, मतलब जो हमारा प्लांट परफॉर्मेंस है उससे हम लोग एम्प्लॉय का जो प्रोडक्शन बनाया उससे कंपेयर करेंगे कि वेदर द एम्प्लॉय हैव सक्सेस और नॉट। जो हमने प्लांट बनाया उसको एम्प्लॉय लोग अचीव किए हैं कि नहीं किए। समटाइम्स उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है, सपोज आपने प्रोडक्शन किया, आपने 100 यूनिट का, ठीक है, तो आपका प्रोडक्शन एम्प्लॉय ने क्या बनाया, 120 का बनाया, 120 के बाद हमारा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा तो रहा है यहाँ पर, लेकिन 20 प्रोडक्शन है, ठीक है, 20 प्रोडक्शन एक्स्ट्रा, हमारे यहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है। सपोज हमारा टारगेट 100 है और एम्प्लॉय ने हमारा 80 बनाया है, तो ये हमारा क्या शो रहा है, नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान टारगेट। अगर ये टारगेट 20-80 का है तो यहाँ पर क्यों हुआ है, इसको क्या कहते हैं, हमको ये डिफरेंस को क्या कहते हैं, डिफरेंस विल बी डेविएशन। डिफरेंस को हम लोग डेविएशन कहते हैं, जो डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, डिविएशन मतलब जो डिटेक्ट करता है हमारे जो डिफरेंस क्यों हुआ।
ऐसा नहीं कि आपने 100 में 120 पॉजिटिव, तो यहाँ भी डिविएशन हो सकता है। और यहाँ पर क्यों डिविएशन हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि अगर एम्प्लॉय 100 प्रोडक्शन का टारगेट था, हमने 120 हमारे एम्प्लॉय बना रहे हैं, तो मे बी द एम्प्लॉय कैन मेक 150 प्रोडक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन और भी बढ़ सकता है, तो हमको और भी अच्छे मेजर्स लेंगे ताकि हमारा जो टारगेट 120 था 150 हो सके। तो ये होता है हमारे पास। तो हर चीज में क्या होता है, पहले हमने कंट्रोलिंग क्या किया, पहले कंपेयर किया परफॉर्मेंस से कि हमारे एम्प्लॉय में क्या प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी एनालाइजिंग द डेविएशन। एनालाइजिंग द डेविएशन मीन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, हमने क्या बताया, एनालाइज डेविएशन इन द डिफरेंस। ठीक है, ऑल द डेविएशन नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू बी नोटिस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी डिविएशन हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को जानना चाहिए। ठीक है, a range of deviations should be established and only beyond the range should be brought to the knowledge of the top level management. Now यहाँ पर deviations का बोला गया है, deviations means detect the deviations why their performance was not actually achieved। मतलब यहाँ deviation बोला, हम लोग को analyze करना है कि वो deviations क्या है, क्या कमी है कि हमारे एम्प्लॉय उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं कि हर डिविएशन हमको टॉप लेवल मैनेजमेंट, कुछ ऐसे डिविएशन जैसे छोटे मोटे डिविएशन हुए तो वो हम लोग सबऑर्डिनेट्स के अंदर मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्व है। जो हमारे बियॉन्ड द डेविएशन रहेगा, जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, सपोज जो वर्कर्स के अंडर कंट्रोल में नहीं रहा, तो वो वाला डेविएशन हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट जाना चाहिए ताकि उसको अच्छा से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर दो टाइप के डेविएशन भी होते हैं। डेविएशन मतलब जो एक छोटा सा डेविएशन, मतलब जो हम लोग माइनरली उसको सॉल्व कर सके। सपोज आप लोग को एज फॉर एग्जाम्पल आई गिवन यू सपोज आप लोग का कुछ ऐसा वर्क है जो आप खुद उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को उसको नहीं बताओगे। ठीक है, ठीक है, जो सोचो कि हाँ हम अपने से सॉल्व कर लेंगे, तो वो क्या एक छोटा सा डिविएशन है जो तुम लोग सोचो कि हाँ हम वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो आप लोग सोचते कि नहीं कर, तभी आप लोग अपने फादर्स को और मदर्स को बताते कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारा नहीं, देन वी हैव टू go for the parents to solve this problem. Same condition has to happen in the organizations also. So deviations, all the deviations must not be known by the top level management. Only those deviations must be known to the top level which are beyond the controls of the workers. ठीक है, जो हमारे वर्कर्स के कंट्रोल के बियॉन्ड है, तभी हम उस डेविएशंस को टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। तो एनालिसिस डेविएशन मतलब फर्स्ट हमको डेविएशन के बारे में जाए कि हमारे प्रोडक्शंस में क्या कमी है। डेविएशन में डिफरेंस हमें बता दिया, द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द उसको डिटेक्ट करना है कि क्या हमारी कमी है, उसको क्या कैसे सॉल्व करना है। तो लास्ट स्टेप में आता है, ऐसा नहीं कि हम लोग एनालाइज द डेविएशन कर ले काम खत्म हो गया, मतलब कि हमने हमारा प्रोडक्शन का क्या कमी है हम लोग नहीं किया। सपोज एग्जाम्पल आपको दिया, सपोज आपने अभी एग्जाम में दिया, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा आपने टारगेट बनाया था हम 90% पाएंगे, लेकिन आपने 80% पाया, तो आपको लगा कि 10% कहाँ कमी आ गई, तो वो आपने एनालाइज किया कि हमने 10% कम पाया। लेकिन अगर उसको आप करेक्टिव करेंगे, करेक्टिव मेजर्स में मतलब आप फिर उसको मेहनत करोगे कि हमको नहीं 90% अचीव करना है, देन द कंट्रोल इज कंप्लीट, तभी आपका वर्क आगे होगा। अगर आप एनालाइज करके रख दे रहे हो तो आप सक्सेस कभी नहीं होगी। एनालाइज करने के बाद अपनी कमी को देखने के बाद आप एक करेक्टिव मेजर्स लेना है कि हमको उस टारगेट को अचीव करना है, देन द कंट्रोल इज कंप्लीट। तो लास्ट स्टेप इज द टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स। टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स आफ्टर एनालाइजिंग द डेविएशन we have to take a corrective measures to outcome the result which was not achieved। मतलब एनालाइज मतलब हम लोग वही टारगेट को अचीव करें जो हम लोग नहीं कर पाए थे। मतलब करेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू, अगर वो वर्कर्स के अंदर में वो कंट्रोल कर सकते हैं देन वी हैव टू कंट्रोल विद इन द वर्कर। अगर वो वर्कर के बियॉन्ड है देन वी द डिसीजन विल हेल्प टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसके लेवल में वो मैनेजमेंट वर्कर्स है वो जाए। तो लास्ट स्टेप में हमारा कंट्रोलिंग का आपको मीनिंग क्या था? कंट्रोलिंग मीन्स सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स एंड टेक द करेक्टिव मेजर्स टू रीच द अचीव द प्लान टारगेट। ठीक है, कंट्रोलिंग का क्या मतलब? हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, कंपेयर करते हैं, देन वी हैव टू डिटेक्ट द डेविएशन एंड देन वी हैव टू टेक अ करेक्टिव मेजर्स टू अचीव द गोल्स। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर द कंट्रोलिंग प्रोसेस।
तो आपको ये कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is that is the relationship between the controlling and the planning. What is the relationship between the planning and controlling? Planning and controlling में क्या relationship है? This is the most important topic of this chapter. Many questions have come from board in this topic. ठीक है? इस topic से बहुत से questions आए हैं, so you must have to know about this. तो क्या relationship है? Relationship क्या है? First is the nature and the scope. क्या nature है? Now, as we know, what is the planning? Planning means it is decide in future what is to done, when, by whom, who will do, and by whom it should be done. मतलब planning is a type, is a function of management. It decides what is to be done, when, by whom, and by whom it should be done. मतलब किसके द्वारा कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो planning decide करता है. तो planning का क्या है? It is a bridges gap between what we are here and what we are in future. प्लानिंग क्या कहता है? आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हमको कहाँ पहुंचना है, ये प्लानिंग डिसाइड करता है. इट इज अ ब्रिजेस गैप बिटवीन द फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. तो प्लानिंग क्या डिसाइड करता है? व्हाट विल वी डू इन फ्यूचर. बट कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग इज द कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस. कंट्रोलिंग क्या करता है? हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है एंड डिटेक्ट द डेविएशन आल्सो टू मेजर द टू टेक द करेक्टिव मेजर टू द प्लान परफॉर्मेंस. ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग में है. क्या प्लानिंग डिसाइड करता है व्हाट इज टू बी डन, व्हेन एंड बाय whom it should be done, and the controlling comparing the actual performance with plan performance, whether the goals which are made by the plan is achieved or not. ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है? कंट्रोलिंग हमारा क्या कहता है कि हमने जो प्लान बनाया उस प्लान को हम लोग अचीव कर रहे हैं कि नहीं, वो जो टारगेट हमारे हैं वो अचीव हुआ है कि नहीं. दिस इज द वर्क ऑफ कंट्रोलिंग. प्लानिंग हैज टू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन, बट कंट्रोलिंग हैज टू बी नो वेदर आवर प्लान टारगेट हैज बीन अचीव्ड और नॉट. इफ नॉट, व्हाट आर द डेविएशन हैज बीन फॉर नॉट अचीविंग द टारगेट. मतलब अगर नहीं हुआ, किस रीजन से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, और उसको कैसे सुधार करें ताकि हम आपको फ्यूचर्स में अचीव कर सके. क्लियर? तो ये एक फर्स्ट रिलेशनशिप है कि प्लानिंग डिसाइडेड इन फ्यूचर व्हाट इज टू बी डन, व्हेन एंड बाय whom it should be done, where the controlling has to be compared to achieve the target which is made by the planning. ठीक है, ये एक फर्स्ट रिलेशनशिप है. नेक्स्ट है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड. हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड. किस तरह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? क्यों? प्लान का क्या है? प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग हैव टू मेक अ प्लान फॉर फ्यूचर. ठीक है, और कंट्रोल का मतलब क्या? यू हैव टू कंपेयर द वेदर अ प्लान हैज टू बी अचीव. अगर हमने कोई प्लान ही नहीं बनाया तो हम लोग किससे कंट्रोल करेंगे? तो naturally they are interlinked. If we made a plan, then the controlling has to be compared the whether the target is achieved or not. So planning and controlling both are interlinked with each other. But if we made a plan, then we have to control, make a control. If there is no plan, there is no work of control. So अगर planning है तभी controlling है, planning नहीं है controlling नहीं है. अगर suppose controlling का क्या होता है? अगर हमने कोई प्लान बना लिया, ठीक है, अगर कंट्रोलिंग का वर्क क्या है? अगर कंट्रोलिंग नहीं रहा तो क्या करें? हम लोग जो प्लान बना ले तो हमको कैसे पता चले कि हमारा जो वर्क है, जो हमने टारगेट बनाया वो हमारा अचीव हुआ है कि नहीं? उसको जो देखना जरूरी है. क्यों नहीं है, वो क्या है? तो ये कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें आप लोग का बहुत बार क्वेश्चन आया, इस पॉइंट को आप अच्छे समझिए. और ये चीज आप लोग जो रिलेशनशिप बोल रहे हो, रिलेशनशिप में से आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे तो उससे आप लोग उसको लिख पाओगे. ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से डेफिनेशन उसके बारे में जान जाओगे तो आपको ये रिलेशनशिप समझने में कोई दिक्कत नहीं. तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. प्लानिंग किसके लिए रिलेटेड है? हमेशा फॉरवर्ड, वो फ्यूचर्स के बारे में सोचता है. प्लानिंग इज ऑलवेज डिसाइड इन फ्यूचर व्हाट इज टू बी डन. ठीक है, लेकिन कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग इज डिसाइडेड बैकवर्ड. प्लानिंग इज ए फॉरवर्ड लुकिंग, whereas the controlling is a backward looking.
क्यों कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग बोला है? क्योंकि कंट्रोलिंग किसका कंट्रोल कर रहा है? द प्लानिंग विच इज अबाउट द पास्ट, जो हमने पास्ट में प्लानिंग बनाया था उस पर देख रहा है कि वेदर व्हाट एवर द प्लान वाज मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट द ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड द टारगेट और नॉट। मतलब कंट्रोलिंग हमेशा हमारा बैकवर्ड्स में देखता है, बट इट ऑल्सो लुक फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग ऑल्सो लुक फॉरवर्ड। किस तरह से फॉरवर्ड होगा? प्लानिंग ऑलवेज डिसाइडेड इन फ्यूचर बट कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड किस तरह से? क्योंकि वो प्लान्स के जो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास के बारे में कंपेयर करता है। अब फॉरवर्ड लुकिंग कैसे? फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स इट डिटेक्ट द डेविएशन एंड मेक अ करेक्टिव मेजर्स टू अचीव द गोल। कंट्रोलिंग इज ए बोथ बैकवर्ड एज वेल फॉरवर्ड लुकिंग। हमने फीचर्स में आपको बताया था कि कंट्रोलिंग इज ए बोथ बैकवर्ड एंड अ forward looking. Backward looking because it looks the plan which is made in the past has to compare whether the whatever the plan made by the organization is achieved or not. And as forward looking, it's forward looking because it detects the deviations from the actual performance with the planned performance and take the corrective measures to improve the performance of the planned target. ठीक है, इस तरह से फॉरवर्ड लुकिंग है कि हमारा डिविएशन को डिटेक्ट कर रहा है, फिर उसको करेक्टिव मेजर्स दे रहा है कि हमारा जो परफॉर्मेंस नहीं अचीव है उसको हमको कैसे अचीव करना था। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। दिस इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक। फ्रॉम दिस वी विल कंप्लीट द पार्ट ए ऑफ बिजनेस स्टडीज। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट बी, दैट इज द फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।